All right, guys, let's wait few more minutes. Our guest will be joining us shortly. Let's just wait few more minutes so that others can join. Just 2 minutes. All right, so assalamu alaikum and welcome everyone. We have here with us Mr. Aftab Chattha. He has been working with CSE for quite some time now, and he's now serving as a CEO of Chattha Biocare. Sir, welcome, sir. Thank you so much for joining us. Welcome. Yes, player. I would request Mr. Aftab Chattha to introduce himself to the audience and continue forward. Thank you, sir. Please, sir. Okay. Can you hear me? I'm audible. Yes, sir, you are. Okay, that's great. So, good afternoon, ladies and gentlemen. It's a pleasure to be part of this forum. It was very nice experience to be part of Fix 2020, and hopefully it will be great experience to be part of Fix 2021. So you are like, it's great to be part of this community. And as Mr. Abdullah, I think he's there, so he has asked me to give a brief introduction about myself. Well, my graduation is in microbiology and molecular genetics from Punjab University, Lahore. And then I have done my MPhil in biotechnology from the same university, and then PhD in cell and molecular biology. And my postdoc is in tissue engineering from Japan. And during my PhD, I had the opportunity to work twice in United States. So I have done some projects related to my area of research, that was stem cells. I have done work in California and in University of Alabama in Birmingham. And for the last 2 years, I was in United States as part of a program in Duke University. Duke University is one of the leading university in US. So I was part of one program of science communication and science policy, and then I have joined the university last year in One Health program. That is one of the issue the world is facing. So this is brief introduction about myself. Another introduction of mine is I'm founder of National Academy of Young Scientists. It's a network of young researchers of Pakistan, and it's a great platform for the young researchers just like you to be part of it, because it's a great platform where you can interact with the young researchers, where you can share your problems, discuss your problems, discuss your ideas. So this platform is mainly for the networking purpose. Actually, I started this and with my colleague back in 2009, and it was a very interesting start. Actually, I was in United States for my research, and there I found that the level of research is very different in United States as compared to in Pakistan. There are a lot of things that are done in a very fast fashion in United States as compared to in Pakistan. So one of the idea was how we can bring a change in research culture in Pakistan. And then we started this National Academy of Young Scientists, so we can provide a platform to our young researchers where they can share their ideas, because we have the limited resources as compared to many countries of the world. So how we can utilize our resources in a best manner, and that was through
through a platform, a dedicated platform where the young researchers they can interact with each other. So that was another start, and that has actually given me an opportunity to be part of different forums. Like I was part of Global Young Academy. It's a network of young researchers across the globe, and I was a member from 2010 to 2015, and we had different meetings across the world to discuss the ideas and to discuss the challenges the world is facing and what solutions we can provide. And beside that, being part of Global Young Academy, I also become the member of World Economic Forum. It's a big forum to discuss the global issues and global economy and what researchers can contribute in that. So that was another opportunity for me to be part of this excellent forum and the discussion going on. So on the basis of all those things that I have learned over last 15 years, being part of different organizations and different forums, I would like to share those things with all of you. And hopefully it will be a great experience for you as well. I prepared a presentation for you to share with you, but I think it will be nice to have initially have some discussion so we can make it more interactive session, and later on if there will be a need, then we will definitely go for some like slides so I can share the work that I was doing and what innovation was there and how we can translate those innovation into something useful in Pakistan. So initially, as I mentioned, that we had a session of, I was part of multiple sessions of Fix 2020, and it was a great experience. So on the basis of those experience, I can guide you that how you can do better in Fix 2021 and how you can actually contribute for Pakistan. Before going into that detail, I will share some of very interesting thing with you. Uh, like where we are standing in Pakistan, so you can have an idea what kind of challenges we are facing. And then we will have some exercises as well. That will be, I am very hopeful that will be helpful for you. And then if there will be need, then we will have some discussion about the work that I have done and what innovation we can bring in that. So let's start with some the first thing that we were discussing, that what issues we are facing in the world, where Pakistan is standing and how much we can contribute. Because now we discuss always on different forum that this is the era of knowledge-based economy. We have to discuss about the things that we can contribute, being the era of knowledge, being the era of economy. So what we can contribute in that. So where Pakistan is standing. Pakistan is a big country, you know. We are full of natural resources. It's a beautiful country. I traveled across the country. I had the opportunity to go to different universities. So that's like being part of National Academy of Young Scientists. It was a great opportunity for me to travel. So I traveled across the country from Gilgit to Karachi to Quetta and deliver session in different universities. So that was a good experience for me that I could travel. Pakistan is a beautiful country, full of resources, very nice weather, very good landscape. That's really it's a very hard to find anywhere in the world. I traveled almost across the world in different countries, but Pakistan is really very unique country, having the landscape, having the weathers. They are like it's very hot at some part and it's very cold at some other parts. So it's a beautiful weathers. The land is very fertile. Only there is a need to utilize all the resources. So Pakistan is a big country, you know, the land we study in Pakistan studies. Pakistan is a population of now over 200 million, so it's a huge population. And you often listen in different forums that around 65% of our population is young population. So we have a huge number of young people who can make the difference. But why we haven't made the difference? हम क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर सके अभी तक? मैं आपको अभी एक मिसाल देता हूँ जी. इन 1960s कहा जाता था कि बहुत सारे कंट्रीज ने, जैसे कि मलेशिया है या साउथ कोरिया है, उन्होंने पाकिस्तान से इकोनॉमिक पॉलिसी ली कि व्हाट वी कैन डू इन
our countries, क्योंकि they were suffering and we were growing very well. Pakistan एक ऐसा country था, you remember that in 1960s we have given the loan to Germany, and we were like to many other, we were offering services to many other countries. Our airline was the best in the world. People love to travel on PIA, so we were growing very fast in the right direction in 1960s, but suddenly things change. So we have to analyze now कि हमारे problems क्या हैं. So actually the idea is to give you a broader picture कि हम कहाँ पे खड़े हैं and how we can make the difference in the current scenario. क्योंकि जितनी ज्यादा हमारे प्रॉब्लम्स हैं उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है. सो आई वाज डिस्कसिंग बैक टू डिस्कशन कि हम अगर बात करें 1960s की तो हम बड़े अच्छी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी, एंड दैट वाज वी वर द लीडिंग कंट्री. और कहा जाता था कि अगले 10-20 सालों में दुनिया का कौन सा जो शहर है वो सबसे ज्यादा आगे होगा, वो लंदन होगा, वो न्यूयॉर्क होगा, वो टोक्यो होगा, या वो कराची होगा. सो द पीपल वर एक्सपेक्टिंग दैट दिस मच ग्रोथ विल बी देयर इन कराची, लेकिन कराची के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं. सो दे हैव took our policies and then they have transformed the countries. अगर आप कोरिया की एग्जांपल ले लीजिए, कोरिया इज अ वेरी स्मॉल कंट्री. पाकिस्तान की पॉपुलेशन मैंने बताया ओवर 200 मिलियंस है, अराउंड 220 मिलियंस है. कोरिया की जो पॉपुलेशन है दैट इज 51 मिलियन. अभी आप अंदाजा कर लिए 5 करोड़ के करीब उनके बाद, ये थोड़ी उससे ज्यादा. और उनकी जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं दैट इज more than 500 billion US dollar. अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो उनके एक्सपोर्ट्स जो हैं दैट इज 442 बिलियन US डॉलर्स एंड उनकी इंपोर्ट्स जो हैं वो 503 बिलियन US डॉलर. अब आप कंपैरिजन कीजिए पाकिस्तान के साथ. सॉरी, ओके. सो अगर आप कंपैरिजन करें इसको पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान की टोटल जो हमारी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं दे आर अराउंड 20 बिलियन US डॉलर्स, और हमारी इंपोर्ट जो है दैट इज अराउंड 45 बिलियन US डॉलर. सो आप एक कंपैरिजन इसमें देखिए कि एक कंट्री है विद ह्यूज नेचुरल रिसोर्सेज, विद ह्यूज यूथ पॉपुलेशन, विद एवरीथिंग, एवरी ब्लेसिंग ऑफ गॉड इज हियर. लेकिन आप इवन कंपेयर कीजिए विद अ कंट्री विदाउट एनी नेचुरल रिसोर्सेज and only due to the knowledge based economy. हम एक आप कोरिया के ब्रांड्स आप देख लीजिए, सैमसंग इज अ वेरी फेमस ब्रांड फ्रॉम कोरिया, दैट कंट्रीब्यूटिंग 20% ऑफ देयर एक्सपोर्ट. उनकी तकरीबन 100 बिलियन से ज्यादा जो एक्सपोर्ट है दैट इज ओनली कमिंग फ्रॉम ए सिंगल कंपनी ऑफ सैमसंग. तो सैमसंग एक अगर कंपनी दे कैन मेक द डिफरेंस, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि बाकी कंपनीज जो है वो किस तरह से कितना बड़ा डिफरेंस जो है वो ला सकती हैं. So these are the challenges that we are facing. अगर मैं आपको चंद एक और एग्जांपल्स देता हूँ, मैं ऑफन डिफरेंट फोरम से भी डिस्कशन करता हूँ कि जी अगर हम इन्हीं कंट्रीज की मिसाल लें कि जिन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया है एंड हाउ दे हैव क्रिएटेड अ डिफरेंस, और हम किस तरह से पीछे रह गए हैं. दिस इज एक्चुअली द नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी. एंड ये जो फोरम्स होते हैं जैसे कि फिक्स का फोरम है, दिस इज एक्चुअली द थिंग्स विच कैन ट्रांसफॉर्म एनी कंट्री. आपके पास जो आइडियाज हो सकते हैं आपका एक आइडिया जो है दैट कुड वैल्यू $1 बिलियन. तो हम अभी जो नेक्स्ट हमारा discussion होगी, we will have more discussion how we can generate such ideas which can transform our country. मैं इसके साथ साथ जो है इसकी जो है चैट सेशन जो है, चैट मैंने विंडो ओपन कर ली. अगर आपके कोई क्विक क्वेश्चंस या कोई क्विक ऐसी चीज होगी जो हम डिस्कस करना चाहेंगे, आई विल डेफिनेटली रीड दोज एज वेल, और उस पे भी हम साथ साथ डिस्कस. यू कैन आल्सो गिव योर इनपुट एज वेल इन दैट. तो एक कंट्री की मैंने आपको एग्जांपल दी कि कोरिया जो है बड़े बड़े ब्रांड्स की हम बात करें, अगर LG है, सैमसंग है, Daewoo है, दे आर द बिग ब्रांड्स फ्रॉम कोरिया एंड दे आर मेकिंग द डिफरेंस इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में ये ब्रांड्स जो है वो छाए हुए हैं. जर्मनी की अगर हम बात करें, जर्मनी इज अ स्मॉल, I visited Germany so many times. I've been to different universities of Germany, different institutes of the Germany. Germany is also a small country with not much natural resources as we have in Pakistan. उनकी population जो है that is around 81. जर्मनी 83 मिलियंस है, हमारी पॉपुलेशन से आधे से भी कम है. इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री, एरिया भी उनका बहुत ज्यादा नहीं है. पाकिस्तान इज अ ह्यूज कंट्री. अगर हम कंपैरिजन कीजिए तो आप देखेंगे, मैं अगर बात करता हूँ स्पोर्ट्स की, तो ओलंपिक्स में दे आर इन टॉप 5.
रैंकिंग, उनके इतने गोल्ड मेडल वो लेते हैं हर स्पोर्ट्स में, दे आर द बेस्ट। वंस द कंट्री वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, आपने देखा वर्ल्ड वार 1 में भी उन्हें खासा नुकसान हुआ, वर्ल्ड वार 2 में भी खासा नुकसान। आई बीन टू द बर्लिन वार के किस तरह से ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन था जिसको डिवाइड कर दिया गया, और जो सिचुएशन उस वक्त थी आफ्टर द वर्ल्ड वार, उसके बाद एक कंट्री ने जो कि टोटली वॉर टॉन था, यानी टोटली ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था, उसकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, उसने किस तरह से कंट्री ने अपने आप को बिल्ड किया है, और उससे हम क्या सीख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने कंट्री को बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप अब जर्मनी की बात करें तो जर्मनी जो है टॉप 10 इनोवेटिव कंट्रीज में आता है। दे हैव ग्रेट माइंड पावर, इनोवेशन, उनकी यूनिवर्सिटीज देखें, दे आर द टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। वो किस तरह से इनोवेशन ड्राइव कर रही है, और हमारी यूनिवर्सिटीज भी उसी तरह से इनोवेशन को ड्राइव कर सकती हैं। सो जर्मनी का मैंने आपको बताया, इससे स्मॉल कंट्री, उनकी पॉपुलेशन 83 मिलियन है, इससे स्मॉल पॉपुलेशन। अब हम उनकी एक्सपोर्ट्स की बात, मैंने पाकिस्तान के आपको एक्सपोर्ट्स बताई हैं कि हम कितने एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, दैट इज अराउंड 20 बिलियन यूएस डॉलर। और अब आप कंपैरिजन कीजिए जर्मनी के साथ, एंड जर्मनी हैज एक्सपोर्ट्स ऑफ ओवर 1500 बिलियन यूएस डॉलर्स। हमारी 20 है, उनकी 1500 है, और उनकी इंपोर्ट भी अराउंड 1500 बिलियन यूएस डॉलर्स के करीब। तो आप देखिए, इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री, ओनली द डिफरेंस इज द नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। आप बड़े बड़े ब्रांड्स देख लीजिए गाड़ियों के, वोल्क्सवैगन है, इट्स अ बिग नेम इन यूरोप, इन यूएस। आप आडी की बात कर लिए, हर किसी की ड्रीम होती है जी मेरे पास आडी हो, तो आडी एक बड़ा, पोर्शे इज अनदर ब्रांड। अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें, मेडिकल डिवाइसेस की, मैं दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में गया हूँ। वंस आई वाज इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और उसके हम सेंटर को विजिट कर रहे थे, और सेंटर को विजिट करते हुए हमने जो इनका इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर, जिस तरह से अभी नस्ट का भी बना है एनएसटीपी के साथ, इट्स अ ग्रेट थिंग टू हैव द इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर्स। तो उनका एक इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर हम विजिट किया, तो उन्होंने हमें एक माइक्रोस्कोप दिखाई, दैट वाज क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इससे पहले जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है, उसमें एक ही सैंपल जो है वो एक वक्त में हम प्रोसेस कर सकते हैं, वो भी बहुत लाइक इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस टू प्रिपेयर द सैंपल एंड देन सी द सैंपल अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन जो क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उसकी ब्यूटी ये होती है, यू कैन रन सेवरल सैंपल्स एट अ टाइम, और आप घर से भी जो है वो सैंपल्स रन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। सो it was a big unit in which cryo was done, and then you can run the multiple sample. और उनसे मैंने पूछा कि ये यूनिट, that was the first unit in United States, उन्होंने कहा this is actually made in Germany, और इसका पहला यूनिट जर्मनी में है, और दूसरा यूनिट जो है अब उन्होंने यूएस में भेजा। बात हम इसलिए कर रहे थे कि दिस इज हाउ द कंट्रीज आर मेकिंग द डिफरेंस, के एक कंट्री है, दे आर प्रोवाइडिंग द लेटेस्ट इक्विपमेंट टू द वर्ल्ड। उनकी, आप अगर पाकिस्तान में, इवन मैं बसेस देख रहा था, मैन की जो अब चल रही हैं, बहुत ज्यादा उसको बिजी राई मिली पाकिस्तान में आफ्टर द डेवो, दे आर आल्सो मेड इन जर्मनी। तो जर्मनी की बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं विच आर मेकिंग द डिफरेंस इन द वर्ल्ड, एंड दिस इज हाउ दैट इज अ लीडिंग कंट्री। और मैंने आपको अभी उनके स्टेटिस्टिक्स बताया कि उनके एक्सपोर्ट जो है दैट इज 1500 बिलियन यूएस डॉलर्स, और हमारी जो है वो दैट इज 20 बिलियन यूएस डॉलर। सो दिस इज हाउ द कंट्रीज आर मेकिंग द डिफरेंस, कि किस तरह से नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में ये कंट्रीज जो हैं दे आर making the difference. So that's why we should like Pakistan was supposed to be equivalent to and even leading in this race of these countries, जिनकी मैंने आपको अभी मिसाल दी है, साउथ कोरिया की मैंने मिसाल दी, मलेशिया की भी अभी मैं कुछ डिस्कशन करूंगा। आई बीन टू मलेशिया several times and I have seen the difference they are making. They are also a leading economy now in the world. तो हम किस तरह से पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं, दिस इज दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड द फोरम्स लाइक फिक्स एंड मैनी अदर फोरम्स इन पाकिस्तान। अब एक जो डिफरेंस मैंने सीखा है फॉर द लास्ट 10 years आफ्टर ज्वाइनिंग सो मेनी मीटिंग्स अक्रॉस द वर्ल्ड, मैंने आपको बताया आई वाज पार्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या ग्लोबल यंग एकेडमी था, या वर्ल्ड साइंस फोरम था। सो इन सारे फोरम्स में द डिफरेंस वाज whenever we used to go to these forums, जब हम जैसे यंग लोग जाते हैं, जिस तरह से आप यंग लोग हैं, उसमें ये होता है एक्चुअली दे गिव अस अ प्रॉब्लम टू सॉल्व। हम पहले दिन जाते हैं एंड देन दे असेंबल अस इन अ वे। सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग चीज ये होती है, मैंने इससे पहले भी पोस्ट भी फेसबुक पे भी शेयर की और अपने जो पेज है उस पर भी शेयर की, स्पीड डेटिंग का एक प्रोसेस करवाते हैं। स्पीड डेटिंग इज अ प्रोसेस
in which they actually, like, there are gathering of people from across the world. So speed dating a process in which we introduce ourselves to each other, so people could know about each other, their expertise, their area of interest, and so on. And then they make group of these people with different expertise. Like, I'm a biologist, they can make me a group with a chemist, with a physicist, with a mathematician, with an economist, and so on. So in those groups of roughly 5 people, we take one problem of the world, and in 2 or 3 days of the meeting, we try to solve that problem with the best innovative solution जो हो सकता है at that. For example, हम एक मिसाल ले लेते हैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो दुनिया फेस कर रही है, that is drinking water. कि हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर किस तरह से प्रोवाइड, पाकिस्तान में भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है. हमारे जो वाटर है दैट हैज ए ह्यूज कंटेमिनेशन प्रॉब्लम, उसमें हैवी मेटल्स की कंटेमिनेशन है, उसमें माइक्रोबियल कंटेमिनेशन इज अनदर इशू. So they give us a problem and they ask us to solve the problem in an innovative way कि क्या बेहतरीन solution हो सकता है जो कि मुख्तलिफ countries में apply हो सकता है. हो सकता है एक solution ऐसा है that could be applied in Europe but that can't be applied in Pakistan. So we have to tailor the solution कि आप जहाँ पे ये problem है वहाँ पे ये solution किस तरह से लेके आ सकते. So in next 3 days we do the brainstorming, हम बहुत ज़्यादा discussions करते हैं, discussion करके, and this is the exercise that you also have to do. You make a team in Fix, और ये team जो है you work together and you solve a problem. कोई एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंड देन यू वर्क. और इसी तरह से प्रॉब्लम इनोवेशन जो है वो इसी तरह से होती है, ब्रेक थ्रू रिसर्च इसी तरह से होती है व्हेन यू पीपल आर सिटिंग टुगेदर एंड डिस्कसिंग द प्रॉब्लम कि ये आपके प्रॉब्लम्स हैं और आप इस तरह से. सो लेट्स गो बैक टू द वाटर थिंग्स दैट वी वर डिस्कसिंग. फॉर एग्जांपल एक हमें चैलेंज दे दिया गया है कि जी आपने क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इस तरह से. अब उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं. एक सॉल्यूशन ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपके पास आपके पास वाटर जो है वो अबंडेंस में है और उसको आप फिल्टर करके दे दीजिए. फिल्टर में आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो यूज कर सकते हैं. फिल्टर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर. अब रिसेंटली ग्रेफीन is a great material जो कि अभी सामने आया कि ग्रेफीन जो है that can have a huge potential to purify the water. तो आप उससे जो है abundance quantity में उसे कर सकते हैं. सी वाटर को इवन फिल्टर करके, कराची में वाटर का इतना बड़ा इशू है तो हम क्या सी वाटर को उससे क्लीन करके कराची की पॉपुलेशन को दे सकते हैं. सो that's one solution. Another solution, I was recently in a meeting in Malta where there were 2 leading scientists from the United States. They came and they presented their work. That was an excellent work. And their solution was how we can provide the drinking water, clean drinking water to everybody everywhere in the world. और उनका solution ये था, for the last 10 years they were working to provide the solution in a way they can actually capture the water from the atmosphere. They have made the device और उसको you can install at home. क्या फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक ऑफिस है, इसमें हम 8 या 10 लोग काम करें. So there is a humidity in the air as well. So we can put a device that could be a small device, जिस तरह से जितना कि एक प्रिंटर होता है फॉर एग्जाम्पल हमारे ऑफिस में पड़ा हुआ, या जितना कॉफी मेकर हमारी इधर नस्ट में काफी जगहों पे आपने कॉफी मेकर्स देखे, इस साइज की एक मशीन होती है. So the technology is to get the water from the air and then condense that water and then capture that water, and that is like you can filter it and use it. So unhone is device pe for the last 10 years they were working and they have developed the prototype and they have started working on like commercial production of those devices. And I was seeing for the kuch years से पहले मैं देख रहा था कि for some places they have put those devices. तो ये वो ऐसी devices हैं which could be revolutionary. हमारे पाकिस्तान में ड्रिंकिंग वाटर का इतना बड़ा इशू है, तो आप घर में एक डिवाइस रख दें. हो सकता है शुरू में इट वुड बी कॉस्टली, लाइक इट कुड कॉस्ट 30-40 हज़ार रुपए, 50 हज़ार रुपए की हो, बट इन द फ्यूचर टेक्नोलॉजी विल बी चीप. जब उनकी मैस प्रोडक्शन होगी दे विल बी चीप प्राइस. तो उसमें ये है कि यू कैन हैव लाइक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. हमारे इस्लामाबाद में इतना बड़ा इशू है वाटर का. हमारे बहुत सारे सेक्टर्स, आई वाज लाइक इवन लास्ट ईयर आई वाज इन E16 और E16 में मुझे बताया गया कि यहाँ पे पानी का इशू है कि पानी नहीं है. G13 में मैं गया, G11 में मैं गया, एंड लाइक आई वाज फाइंडिंग ए हाउस
और अक्सर जगहों में हमें यही बताया गया कि पानी वहां पे नहीं है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम हियर एज वेल। आप इसका कितना जो है कितना एफिशिएंट वे है कि आप एक ऐसी डिवाइस बना लें। दिस ए ह्यूज मार्केट नॉट ओनली इन पाकिस्तान। अगर आप ऐसी डिवाइस अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल बना लेते हैं, ऐसी प्रोटोटाइप आप डेवलप कर लेते हैं, तो आप देखिए कितनी बड़ी मार्केट है। हमारा ये एक शहर नहीं है, हमारे लाइक बहुत सारे ऐसे शहर हैं। फैसलाबाद में पानी खा रहा है, कराची में पानी का इशू है। तो बहुत सारे शहरों में जो water problem है, we can solve that problem. So this is how when we discuss the things at different forums, we bring upon the solutions and we network with the people, and this is how we can actually bring the change. तो अभी हमने 25 minutes की discussion की है। I would like कि इस वक्त हमारे पास 50 plus participants हैं। अगर आपके पास नोटबुक नहीं है तो आप अपने फोन पे कर सकते हैं, और अगर आपके पास नोटबुक है तो आप एक पेज लीजिए। एक हम छोटी सी एक्सरसाइज अभी करने जा रहे हैं, लाइक मे बी इन नेक्स्ट 5 मिनट्स टिल 30 मिनट्स, अभी 25-24 चले। तो इन नेक्स्ट 5 मिनट्स हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। आप अपने फोन पे कर सकते हैं, आपके पास अगर कॉपी और पेपर है तो आप उस पे कर सकते हैं, मैंने भी रखा हुआ है अपने साथ। तो उसमें हम ये एक छोटी सी एक्सरसाइज हमने ये करनी है कि ऑन वन साइड ऑफ द पेपर आप उसमें एक ही पेपर पे जो है दरम्यान में लाइन ड्रॉ कर लें, या उसके पीछे आप लिख सकते हैं। तो एक वन साइड पे आपने लिखना है कि व्हाट यू आर अप टू नाउ। ये अगर हम फिक्स का ही एक जो है सोल्यूशन लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल फिक्स में आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपने अपनी करंट जो है स्टेटस डालना है कि आपके पास क्या एक्सपर्टीज हैं, किस फील्ड के हैं आप, कंप्यूटर साइंसेज के हैं आप, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं आप, रोबोटिक्स के हैं, व्हाट यू आर अप टू, आपके पास कौन सी स्किल्स हैं। तो ये आपने एक साइड पे अभी नोट करना है। ऑन द अदर साइड, जो दूसरी साइड पे, तो आपने एक साल बाद का लिखना है कि व्हाट आफ्टर फिक्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू। आप एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, कंपनी कितनी बड़ी हो, 30 लोगों को अप्लाई करना है, 100 लोगों को अप्लाई करना है, 500 लोगों को अप्लाई करना है, उसकी वैल्यू जो है अभी आपके पास कोई पैसे नहीं है, हो सकता है व्हाट इज योर करंट इनकम या करंट आपके पास नेट जो इस वक्त मौजूद है, हो सकता है 1 लाख हो या 10 लाख हो। आप एक साल बाद आरडी परचेज करना चाहते हैं, यू कैन आल्सो मेंशन इन दैट कि आप लिखें कि मेरे पास एक साल बाद आरडी होनी चाहिए, एक अच्छा सा ऑफिस होना चाहिए बड़ा सारा, मेरे पास 50 एम्प्लॉयज होना चाहिए, जो भी आपका आप व्हाट यू आर थिंकिंग एट राइट नाउ इन योर माइंड कि एक साल बाद आप कहाँ पे अपने आप को देखना चाहते हैं। सो ऑन द अदर साइड यू हैव टू राइट दैट। तो अभी मैं आपको 2-3 मिनट्स देता हूँ जिसमें आप ये छोटी सी एक्सरसाइज कीजिए, तो हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। So your time begins now. I will stop you at 30 minutes.
मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, आप उसका इमेज मुझे भी सेंड कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हैव 1 or 2 images सो आई कैन हैव सम आइडिया कि आप ठीक उसे कर रहे हैं या किस तरह से आप कर रहे हैं उसको। एक्चुअली इन Zooms and in meetings the things are very different. ये हमारा सेशन अगर लाइव में होता, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोरोना वी हैव टू डू दिस द ऑनलाइन, तो उसमें ऑनलाइन में उस तरह से जो है वो मज़ा नहीं आ रहा होता जिस तरह से नॉर्मली वी हैव इन आवर मीटिंग्स के हम ये सारी एक्सरसाइजेस करते हैं। इवन जो आइडिया जनरेशन सेशन होता हमारा, तो वी विल डेफिनेटली, दिस इज द एक्सरसाइज दैट आई हैव डन in several universities of Pakistan. We generate excellent ideas by making the team, और उसमें हम ये सारी डिस्कशन करते हैं। So that's always very interesting to have like in-person meetings and sessions. Hopefully, after the corona, you have the whole year to discuss these things. So I'll be happy कि हम इस तरह के exercise fix के through या किस तरह से हम जो है उसमें करते जाएंगे। So I'm waiting for 1 or 2 images. If somebody can share, then I'll have some idea कि आपने किस तरह से exercise की है और क्या आपने किया है। Otherwise, I'll continue like in a minute. I was told most of the participants have the engineering background and they have to do the final year project. So it will be nice to have some interesting ideas. Pakistan को entrepreneurship की बड़ी ज़रूरत है. So this is something to bring the entrepreneurship in Pakistan, innovation and entrepreneurship in Pakistan. हम जो डिस्कशन इससे पहले कर रहे थे, लेट मी गिव यू द स्टेटस ऑफ पाकिस्तान इन इनोवेशन। पाकिस्तान की जो अभी रिसेंटली रैंकिंग आई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, जिसमें 130 कंट्रीज को कंपेयर किया गया, तो पाकिस्तान का नंबर जो है 107 है ग्लोबल इनोवेशन में। यानी हमारा नंबर जो है वो 100 कंट्रीज के बाद आता है इनोवेशन के हवाले से। तो पाकिस्तान इज नॉट रियली गुड इन इनोवेशन, एंड द पीपल लाइक यू हैव द एक्सीलेंट माइंड, और आपके पास पैशन है, आपके पास एनर्जी है, यू कैन ब्रिंग द इनोवेशन। और ये इसी तरह से हम आइडियाज जो हैं वो आगे लेके आके इनोवेशन कर सकते हैं पाकिस्तान में। इवन अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, तो इंडिया की अभी जो रिसेंट रैंकिंग आई है दैट इज 50, वो अब 50 टॉप 50 नेशंस में शामिल हो गए हैं इनोवेशन के हवाले से। तो पाकिस्तान हैव टू स्ट्रगल वेरी हार्ड टू ब्रिंग द इनोवेशन। और यूनिवर्सिटी हमारी, यू आर इन द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज हैं, जहाँ पे टैलेंट है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे वर्ल्ड लीडिंग फैकल्टी मौजूद है। So you can really bring the innovation in Pakistan, being part of this university. I think the initiative they have taken, like for the innovation, their Center for Innovation and Entrepreneurship, and NSTP is another place you can come here, क्योंकि यहाँ पे more than 70 companies मौजूद हैं to bring the innovation, और आप इनसे कोलैबोरेशन कर सकते हैं। मैं जो आपको चीज़ शुरू में बता रहा था कि द डिफरेंस आई हैव फाउंड, जो इससे पहले प्रोजेक्ट्स वैल्यूएशन हमने की फिक्स 2020 की, और आप लोगों की हम वैल्यूएशन करेंगे, उसमें एक जो बड़ा डिफरेंस आता है वो ये होता है कि यू हैव वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स आपके माइंड में होते हैं कि दिस इज रियली कूल प्रोजेक्ट एंड दिस कैन मेक द डिफरेंस इन द वर्ल्ड, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन उस तरह से नहीं हो पाती, क्योंकि वो एक अच्छी इन्वेंशन तो हो सकती है जो कि आप करते हैं, लेकिन इनोवेशन नहीं हो सकती। इनोवेशन और इन्वेंशन का डिफरेंस ये होता है, इन्वेंशन कोई भी नई चीज है, कोई बहुत अच्छा नया प्रोसेस हो सकता है, कोई बहुत अच्छी नई प्रोडक्ट हो सकती है, लेकिन इनोवेशन तब होगी जब उसकी कमर्शियल वायबिलिटी होगी, वो कमर्शियली आप उसे सेल कर सकेंगे, तो दैट्स द इनोवेशन। मैं आपको मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं अक्सर मुख्तलिफ फोरम में, क्योंकि ये आसान भी है, तो आई ऑफन शेयर दिस एग्जांपल। इन्वेंशन ये हो सकती है कि आप कार्बन से, कोयले से आप डायमंड बना लें, दैट्स ए प्रोसेस ऑफ, जो इससे पहले एक नेचुरल प्रोसेस था, अब हम उसे आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। तो एक हीरा है जी, छोटे साइज का, उसकी कीमत अगर 1 लाख रुपया है, और आपने एक इन्वेंशन की है, आप कार्बन से, कोयले से हीरा बना सकते हैं,
और वो 10 लाख में बना है, तो दैट कुड बी एन इन्वेंशन कि आपने एक प्रोसेस ऑप्टिमाइज किया है और एक नया प्रोसेस है जिसमें आप कार्बन को इस तरह से असेंबल करते हैं कि वो डायमंड बन जाता है। लेकिन वो एक इन्वेंशन होगी। इनोवेशन ये होगी कि अगर 1 लाख रुपए का हीरा मार्केट में है और आपने वो प्रोसेस इस तरह से किया है कि उसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 50,000 पड़ी है, तो वो कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट है, आप उसको सेल कर सकते हैं। तो दैट्स द इनोवेशन। तो इनोवेशन जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हम इसी तरह से आफ्टर शेयरिंग द आइडियाज वी कैन ब्रिंग द इनोवेशन। तो कुछ लोगों ने शेयर कर दी हैं जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर नोटबुक विद मी, दैट्स इंटरेस्टिंग, और आई विल डेफिनेटली हैव अ लुक, और दिस इज समथिंग वेरी गुड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। जिन लोगों ने मेरे साथ अभी शेयर किया है, वी कैन हैव फर्दर डिस्कशन एज वेल। तो मैं आपको बता रहा कि नस्ट इज ए गुड प्लेस कि आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इससे पहले जो मैं आपको बता रहा था, एक चीज जो हम लैक कर रहे हैं इन सो फार इन योर आइडियाज, और जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जैसे काम सेट्स में बिजनेस आइडियाज कंपटीशन होते हैं, या पंजाब यूनिवर्सिटी में या दीगर यूनिवर्सिटीज में, आई बिन टू दोज कंपटीशन। तो इन सारी जगहों पे यू हैव एक्सीलेंट आइडियाज इन योर माइंड, और बहुत ही अच्छे इस दफा रिसेंटली जो आइडियाज थे बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। इवन मैंने आपको बताया कि आई ट्रैवल ऑलमोस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, और हम इंटरनेशनली भी जाके यही आइडियाज देखते हैं, एवेल्युएट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं और प्रेजेंटेशन में शामिल होते हैं। सो अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आप लोगों के आइडियाज दे आर इक्वली गुड एज दे आर इन द वर्ल्ड। उसमें सिर्फ एक चैलेंज पाकिस्तान के हवाले से ये है कि पाकिस्तान में इनोवेशन इकोसिस्टम नहीं है। यहाँ पे उस तरह से चीज़ों को फैसिलिटेशन नहीं दी जाती। मैं आपको मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल चाइना में अगर आपके पास एक एक्सीलेंट आइडिया है जिसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसके लिए आपको $1 मिलियन चाहिए हैं, तो चाइना के बैंक्स जो हैं वो कहते हैं कि ठीक है, आप हमसे $1 मिलियन ले लीजिए, और आप अगर 5 सालों में $1 मिलियन की एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो आप पैसे वापस नहीं करेंगे। तो इतनी बड़ी फैसिलिटेशन है कि आपके पास चीजें आ गई और आप काम शुरू कर दिए, और आप अगर एक्सपोर्ट कर लेते हैं तो आपको पैसे ही नहीं देने पड़ेंगे। और यहाँ पे हमें अभी तक जो है वो एक तो कर्ज लेना ही बड़ा मुश्किल प्रोसेस है पाकिस्तान में, और दूसरा अगर आप ले लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट रेट ही इतना ज्यादा होता है कि आप यू सफर इन ऑल दैट। तो इस तरह से वी आल्सो हैव टू डेवलप द इनोवेशन इकोसिस्टम, जो एक चैलेंज है। आइडियाज के हवाले से अगर हम बात करें, जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि आपके आइडियाज जो हैं दे आर ऑलवेज एक्सीलेंट, और उनको एक्सीलेंट आइडियाज को ओनली देयर इज नीड टू ट्रांसलेट, और उसमें जो बड़ा गैप होता है वो होता है इंडस्ट्रियल इनपुट। फॉर एग्जांपल आप मैं एक दो मिसालें आपको देता हूं जो अभी फिक्स में आइडियाज थे। एक आइडिया था जी एयर को प्योरीफाई करने का। ये एक नया आइडिया नहीं था, इससे पहले दुनिया में एयर प्योरीफायर मौजूद हैं। चाइना में उन्होंने इंस्टॉल किए हैं बहुत बड़े बड़े हैवी एयर प्योरीफायर, जिसमें उन्होंने फिल्टर्स लगाए हैं ताकि हवा से जो है जो पार्टिकुलर मैटर है उसको वो सक करें और उनसे वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। दैट्स आइडिया। अब नया आइडिया ये है कि हमारे यहाँ कुछ शहरों में, इवन पाकिस्तान के काफी सारे शहर जो हैं वो टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं। फैसलाबाद की एग्जांपल ले लें, कराची की, लाहौर की एग्जांपल हम ले लें, पेशावर की हम एग्जांपल ले लें, तो ये टॉप 10 या टॉप 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में आते हैं। तो हम हमारे, और जो एक अक्सर मुख्तलिफ फोरम्स में डिस्कस करता हूँ कि हमारी ओवरऑल जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है पाकिस्तान की वो दुनिया से कम है। उसमें 4-5 साल कमी सिर्फ हमारी पोल्यूटेड एयर की वजह से होती है। तो एक आइडिया जो अभी प्रेजेंट किया गया था वो ये था कि हम जो है इंडोर ऑफिस के लिए और इंस्टीट्यूट्स के लिए हम जो है सोलर पावर्ड एयर प्योरीफायर हम लगा सकते हैं। सो आइडिया इज इंटरेस्टिंग और इससे होना भी चाहिए। उसमें कुछ बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व नहीं है। यू जस्ट हैव टू पुट द फिल्टर, और उसमें एक फैन होगा जो एयर सक करेगा, ब्लोअर होगा या फैन आप लगाएंगे, और सोलर पावर्ड होगा, इसलिए आप इजीली उसको यूज कर सकते हैं। अगर रात को भी यूज करना है तो यू कैन पुट ए बैटरी इन दैट। अब नेक्स्ट चैलेंज जो उसमें होता है, आइडिया इज गुड और पाकिस्तान में ट्रांसलेट भी हो सकता है। पाकिस्तान के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं विच विल डेफिनेटली बाय दैट,
लेकिन उसमें ये होता है कि लार्ज स्केल जब आप उसकी प्रोडक्शन करेंगे, दैट्स अ चैलेंज। उसके लिए आपने पैसे भी लेने हैं, आपने मशीनरी भी लेनी है, आपको जगह भी चाहिए है, तो उसमें उस तरह की फैसिलिटेशन नहीं होती। उसके लिए आपका एक इंडस्ट्रियल पार्टनर होना चाहिए। इंडस्ट्रियल पार्टनर का क्या रोल होता है, वो आपको गाइड कर सकता है कि इसमें क्या, आप नेक्स्ट जब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर कि जब मैंने शुरू किया था अपनी कंपनी चट्ठा बायोकेयर, जो शुरू में इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया कि जी कंपनी है चट्ठा बायोकेयर, तो चट्ठा बायोकेयर में आई वाज थिंकिंग एट दैट टाइम कि जी प्रोडक्ट बनाना जो है इट्स नॉट अ बिग डील। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रोसेस क्या है जिससे हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आई वाज थिंकिंग बैक इन माई, हम जो काम कर रहे हैं वो बायो फर्टिलाइजर्स पे है और प्रोबायोटिक्स पे है। दो एरियाज पे हम इनिशियली फोकस कर रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर्स में हम मुख्तलिफ बैक्टीरिया पे काम करते हैं, माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स हैं जो हवा से ही नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं और यूरिया आपको फील्ड में डालने की जरूरत नहीं पड़ती। सो दे आर लाइक नेचुरल मशीनरीज विच आर वर्किंग, और आपको यूरिया की जरूरत नहीं। Up, like I was working in area of microbiology for the last 10 years, and I was expecting that we have like in our laboratories some excellent bacteria which can do the process. They are optimized to do that work. अब इसकी प्रोडक्ट बनाना तो कोई इतना मसला नहीं है। आई कैन प्रोड्यूस दैट इन लार्ज स्केल एंड प्रोडक्ट विल बी रेडी एंड दैट विल बी इनटू द मार्केट, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये आप अभी अपने जहन में जरूर चीज रखिएगा। देयर आर थ्री इक्वली इंपॉर्टेंट थिंग। वन इज डूइंग द रिसर्च एंड डेवलपिंग द प्रोटोटाइप। ठीक है, आप एक जो है रिसर्च करते हैं, इवन रिसर्च से लेके प्रोटोटाइप डेवलप करना इज समथिंग वेरी डिफरेंट। प्रोटोटाइप जब आप डेवलप कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई रोबोट बना रहे हैं या आप कोई सेंसर डेवलप कर रहे हैं, सेंसर फॉर एग्जांपल एक चैलेंज जो हम फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में कि हमारे हाँ स्मार्ट फिश पॉन्ड के सेंसर्स नहीं हैं। ठीक है, ये एक चैलेंज है पाकिस्तान में। मैंने राब्ता किया 3 साल पहले कायदा यूनिवर्सिटी के साथ, फिर मैंने कॉमसर्ट्स के साथ जो है वो राब्ता किया कि वी नीड द सेंसर्स बिकॉज वी आर फ्रॉम एन एरिया इन विच देयर आर ह्यूज फिश पॉन्ड्स। हमारे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में अलीपुर चट्टा के इर्द गिर्द 50,000 एकर्स पे फिश पॉन्ड्स मौजूद हैं। सो दैट्स अ ह्यूज एरिया। सो द प्रॉब्लम इज कि अक्सर जो है फिश की डेथ हो जाती है। उसके लिए हमें, अगर हमारे पास सेंसर्स मौजूद हों जिसमें हम मुख्तलिफ पैरामीटर्स देख सकते हैं, जैसे उसकी पीएच होती है पानी की, उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी है, उसमें पार्टिकुलेट मैटर कितना है, सैलिनिटी का लेवल क्या है, सो दीज आर डिफरेंट जो सेंसर्स हैं वो हमें चाहिए होंगे। आप भी कहते हैं जी मैं स्मार्ट फिश पॉन्ड जो है वो बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं डिवाइस बनाऊंगा, लेकिन आपके पास ये आइडिया है, उसको आपने ट्रांसलेट करना है। जब आप प्रोटोटाइप डेवलप उसकी करते हैं, दैट्स अ बिग थिंग। आप उन सारी चीजों को, सारे सेंसर्स को लेते हैं, उसकी कैलकुलेशंस करते हैं, कैलिब्रेशंस करते हैं, एंड देन यू डेवलप सम एल्गोरिदम्स जिससे आप उनको लाइक कन्वर्जन करते हैं, जो भी उनका डाटा आ रहा होता है वो आपके एप्लीकेशन पे आ जाए। सो दैट्स अनदर थिंग। तो इस तरह से ये काम करना इससे बिग चैलेंज। पहला तो ये होता है कि उसकी जो प्रोटोटाइप डेवलप करनी होती है वो एक बड़ा चैलेंज होता है। आप प्रोटोटाइप अगर उसे डेवलप करते हैं, देन यू गो टू द प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो देखा गया है वो प्रोडक्ट हम उस तरह से, एक तो बहुत अच्छी नहीं, वेल लुकिंग प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं हमने। इवन नस्ट इज ए गुड प्लेस। मैंने चंद यूनिवर्सिटीज ऐसी देखी हैं विच रियली पुट वेरी गुड एफर्ट, जो प्रोटोटाइप भी बड़ी अच्छी डिजाइन करते हैं, दे आर गुड लुकिंग, इट शुड बी गुड लुकिंग कि लोग अट्रैक्ट हों, उसे देखना चाहें कि ये एक अच्छी। एंड देन द प्रोडक्ट मेकिंग, कि प्रोडक्ट भी ऐसी होनी चाहिए दैट शुड बी गुड लुकिंग, कि लोग उसे देख के थोड़ा उसकी तरफ अट्रैक्ट हों कि जी दैट्स अ गुड प्रोडक्ट। और उसके बाद एक उतना ही बड़ा चैलेंज जो होता है वो दैट इज कमर्शलाइजेशन। आप उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं। तो हमारे यहाँ even that's quite true, not only in Pakistan but also the world, कि 85 to 90% तक जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रांसलेट नहीं हो पाती। उनसे प्रोडक्ट्स हम नहीं बना सकते। प्रोडक्ट अगर बना भी लें तो हम उसे कमर्शलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि वो हम मार्केट को ही नहीं टच कर पाते, हम मार्केट को अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि किस तरह से हम इसको सेल कर सकेंगे। सो दैट्स अनदर बिग चैलेंज। तो आपने 3 चीजों को जहन में रखना है जब आप शुरू से ही उस पर काम करें। आपने आइडिया कौन सा है, आप उससे प्रोटोटाइप जो डेवलप करेंगे वो किस तरह से डेवलप करेंगे। प्रोटोटाइप जरूर आप डेवलप कीजिए। मैं कुछ ऐसे इन्वेंटर से मिला विच कुड वन द प्राइजेस अक्रॉस द वर्ल्ड। उन्होंने दुनिया में बड़े अच्छे प्राइजेस देखे, विन किए।
उसमें एक डिफरेंस पता है क्या था उसमें, ये एक बड़ी काम की बात है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि यू हैव टू प्रेजेंट योर आइडियाज। और जो लोग सबसे अच्छी और सबसे जल्दी और सबसे अच्छी जो है प्रोटोटाइप उसकी डेवलप करते हैं, उनके आइडिया के सक्सेस के, उनके जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप अपनी उसको एक पिच प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कहीं आपने फंड रेजिंग करने के लिए जो है आपने प्रेजेंटेशन देनी है, या जजेस के सामने अपने आइडिया को आपने प्रेजेंट करना है। जो लोग प्रोटोटाइप डेवलप कर लेते हैं, that really give a good impact in the mind of the judges कि ये वो लोग हैं which are really keen about their product, ये have developed the prototype and they have the potential to develop this prototype into a product and they can commercialize later on. So एक आपके लिए बहुत important चीज ये है, so you should actually develop the prototype, और अच्छी prototype develop कीजिए, that should be good looking। और जो हम डिस्कस कर रहे थे, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, वो ये हैं कि आपकी आइडिया जो है आपके जहन में क्या है, आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसकी प्रोटोटाइप डेवलप कर सकते हैं। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट जो होती है, दैट इज द मार्केटिंग, कि आप उसको क्या मार्केटाइज कर सकते हैं कि नहीं, और मार्केटिंग इज एन इक्वल इम्पोर्टेंट जॉब। हमारी यूनिवर्सिटीज जो हैं ओवरऑल हम लैग कर रहे हैं कि हम यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो ट्रांसलेट नहीं हो पा रही होती। दुनिया भर में मैं आपको बताऊं, दुनिया भर में 50% तक जो होता है, 50% तक जो इनोवेशन हो रही होती है वो यूनिवर्सिटीज में हो रही होती है। यूनिवर्सिटीज आर द आइडियल प्लेसेस फॉर द इनोवेशन। लेकिन पाकिस्तान में एक चैलेंज ये है कि पाकिस्तान में हमारी चीजें ट्रांसलेट नहीं होती। यूनिवर्सिटीज में प्रोडक्ट्स तो हम बनाते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, लेकिन वो हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते। वो इसलिए नहीं कर पाते कि हमारे पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं होता, कि हम इंडस्ट्री से जाके बात ही नहीं करते कि आपने जो प्रोडक्ट बनाई है आप हमें फीडबैक दीजिए कि हम अपनी प्रोडक्ट को किस तरह अकॉर्डिंगली फिट टू द मार्केट बना सकें। बहुत सारी मैंने आपको एक मिसाल दी, और इस तरह से बहुत सारी मिसालें हैं आपके जो फिक्स 2020 था, जिसमें प्रोडक्ट्स जो फाइनल स्टेज में पहुंची और जिन्होंने वन किया जो कंपटीशन था, उसमें से सिर्फ उसमें ये था, अभी दे आर फेसिंग द समटाइम द चैलेंज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ दैट। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है दैट यू आल्सो हैव टू ओवरकम, कि किस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट को जो है आपने सोचना है कि उसको आप किस तरह से कमर्शलाइज कर सकते हैं। सो दैट्स अनदर इक्वल जो है ना वो इसमें चैलेंज होता है। अब हम ब्रीफली, अगर आपके कोई साथ साथ क्वेश्चंस हैं, दैट विल आई विल बी हैप्पी टू। सॉरी, अगर आपके मैं इसमें एक दो चीजें बस डिस्कस करके आई विल गिव द रेस्ट ऑफ द टाइम फॉर आवर क्वेश्चन आंसर सेशन। हम कुछ लाइक अगले 3-4 मिनट में आई विल हैव सम मोर डिस्कशन एंड देन आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। तो एक चीज मैं डेफिनेटली, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं विच आई वुड लाइक टू शेयर, कि किस तरह से हम जो है अपने आइडियाज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, दैट इज कि एक बंदा था, उसको जो है एक वो एयर ट्रैवल कर रहा था, और एयर ट्रैवल करने के दौरान उसके पास एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था, और उस बच्चे ने उससे सवाल पूछा कि कामयाबी क्या है, कामयाबी कैसे हासिल हो सकती है। बंदा इंटेलेक्चुअल था, उसने सारी जिंदगी ऐसी डिस्कशन की थी, लेकिन वो उसने एक दफा उस पर सोचा कि किस तरह से जो है कामयाबी है क्या और हम कैसे हासिल कर सकते हैं। फॉर द नेक्स्ट 5 years he interviewed over 500 people which were successful, और उन सारी इतनी लंबे चौड़े इंटरव्यू करने के बाद उसने 7 पॉइंट्स रखे कि these 7 points are very important for the success of any individual, any organization and any country। वही अभी 7 पॉइंट मैं आपके साथ briefly in next 2-3 minutes I will share those, और उन 7 पॉइंट्स के बाद आई विल स्टॉप। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं विच आई वुड लाइक टू डिस्कस। मैंने आपको बताया शुरू में, आई मेड द होल प्रेजेंटेशन कि मैं आपके साथ स्लाइड वो शेयर करूँ और ये सारी चीजें करूँ, बट देन आई थॉट वी शुड हैव लाइक सम इंटरेक्टिव सेशन, और उसमें सिर्फ स्लाइड्स ही नहीं होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट डू दैट मच interaction। But I have shared my WhatsApp number, so you can actually, whenever you have some idea in your mind in which I could help, I'll be definitely there to help you। तो जो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारे लोगों की इंटरव्यूज करने के बाद जो उसने पॉइंट्स लिखे कि ये चीजें अगर
शामिल हो जाएं आपकी लाइफ में, यू विल बी डेफिनेटली बी सक्सेसफुल। और जो शुरू में मैंने आपको एक्सरसाइज की थी कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आप अगले साल फिक्स के बाद आपने आपको कहाँ देखना चाहते हैं, या अगले 5 सालों में कहाँ पे देखना चाहते हैं, उसके लिए भी आपने इन्हीं चीज़ों पे अमल करना है, तो यू विल बी डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला यू विल बी सक्सेसफुल। उसमें पहली चीज़ है जी हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हार्ड वर्क के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। फॉर एवरी सक्सेस यू हैव टू मेक द एफर्ट्स। आपने अपनी यूनिवर्सिटी में ग्रेड्स अच्छे लेने हैं, आपने कुछ भी एस्टेब्लिश करना है, यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट इन दैट। तो हार्ड वर्क इज द की, वन ऑफ द की के दैट मेक्स यू सक्सेसफुल। Another important thing is passion. If you are passionate, मैंने दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखा है in my whole career as well. I have seen those people who are passionate to do the things, they do it. जिनमें पैशन होता है वो कर सकते हैं। मैं आपको क्विकली मिसाल देता हूँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ा बजट रखा था एविएशन के लिए कि दे वांट टू स्टार्ट सम फ्लाइट फॉर द पीपल के हवा में किस तरह से उड़ा जा सकता है। लेकिन राइट ब्रदर्स दे हैड द पैशन, उनके में पैशन था कि उन्होंने ये काम करना है, एंड दे कुड डू इट अर्लियर देन द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इतना बड़ा बजट था, इतने ज्यादा इंजीनियर्स थे, इतनी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, उसके मुकाबले में दे वर द टू ब्रदर्स एंड दे वर मेकिंग द एफर्ट। उनके पास उतना ना तजर्बा था ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, बट दे हैड द पैशन, और वो उस पैशन की वजह से दे कुड डू इट। तो पैशन इज वेरी, आप में भी अगर पैशन है कि आपने ये काम करना है, फिक्स में आपने पहले नंबर पे आना है, या अगले 1 साल में आपने अपनी कंपनी स्टार्ट, देयर आर सो मेनी सक्सेसफुल एग्जांपल फ्रॉम नस्ट। मैं जो है यहाँ पे भी एक कंपनी थी, उनके मल्टीपल ऑफिसेज आप अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। दे केम फ्रॉम नस्ट, दे कुड डू बिजनेस इन 2-3 years, इतना अच्छा काम कर सकें, यू कैन आल्सो डू दैट। तो पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज जो सक्सेसफुल पीपल्स में होती है वो होती है आइडियाज। दे हैव सेवरल आइडियाज इन माइंड, और उन हर वक्त आइडियाज के बारे में सोचते होते हैं। सारे आइडियाज वर्क नहीं करते, आप बहुत सारे आइडियाज आपके जहन में आते हैं, आप उन पे थोड़ा सा काम कीजिए, यू विल सी कि ये आइडियाज जो हैं ये ट्रांसलेट हो सकते हैं या नहीं, ये सक्सेसफुल हो सकते हैं या नहीं, या इस सर्कमस्टेंसेज में ये आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। बहुत सारे आइडियाज जहन में आते हैं कि ये काम मैं कर लूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी नहीं ट्रांसलेट कर सकता। सो यू शुड थिंक about different ideas, different opportunities, different gap into the market, और उस पर आप सोचिए, आइडियाज जनरेट कीजिए, उसे एनालाइज कीजिए, एंड देन you can translate those ideas. Another important thing is the focus. If you have the focus on certain things, हमारे यहाँ एक और इशू भी है, पाकिस्तान में हम उतने फोकस नहीं है चीजों पे, हम मल्टीपल एरियाज में चले जाते हैं, जस्ट लाइक हम लाइक इवन माय ओन एजुकेशन, आई वाज इन माइक्रोबायोलॉजी, देन आई वेंट टू बायोटेक, देन इन सेल बायोलॉजी, एंड देन इन टिश्यू इंजीनियरिंग। सो इफ आई वाज ओनली इन द माइक्रोबायोलॉजी, आई like could have gone to some other extent maybe. So one thing is the focus. If we focus on one thing, then we can definitely take it ahead. आप किसी एक, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, दे फोकस ऑन देयर सर्टेन प्रोडक्ट्स, और उसी पे वो आगे लेके। एप्पल की आप मिसाल लीजिए, एप्पल के जो एसेट्स हैं, दे आर नाउ ए $1 trillion कंपनी। उनके पास इतनी जो रकम है कि लाइक बहुत सारे कंट्रीज के पास भी नहीं है। सो दे फोकस्ड ऑन देयर प्रोडक्ट्स, और उन्होंने इतना एक्सीलेंट उसको बनाया कि दे हैव द ह्यूज डिमांड इन द होल वर्ल्ड। अनदर थिंग इज द परसिस्टेंस। जो लोग परसिस्ट करते हैं, हमारे यहाँ डिस्करेज बहुत किया जाता है, इनकरेजमेंट की ओवरऑल हमारे यहाँ बड़ी कमी है, कि इवन आई हैव सीन लाइक इन फेक्स एंड इन मैनी अदर फोरम्स के हमारे पास जो आइडियाज बच्चे लेके आते हैं, दे हैव द एक्सीलेंट आइडियाज, हम उन्हें, जो जजेस होते हैं वो उन्हें डिस्करेज कर देते हैं शुरू में, नहीं नहीं ये तो ऑलरेडी वहां पे भी है और यहाँ पे भी है, और दुनिया में ऑलरेडी ये हो रहा है, तुमने कौन सा नया काम किया है, और ऐसे किया है और वैसे किया है। दैट इज लाइक डिस्करेजमेंट, और उससे डिस्करेज हो जाते हैं बच्चे। ऐसा नहीं होना चाहिए, यू शुड परसिस्ट। परसिस्टेंस जो है दैट्स की टू द सक्सेस। अगर आप परसिस्ट कर जाते हैं, आप कंटिन्यूसली उसमें लगे रहते हैं, आप कुछ करते जाते हैं, बिलीव मी व्हेन यू आर इनटू समथिंग और आप उसमें मूव करते जाते हैं, न्यू आइडियाज आपको मिलते हैं, नई राहें आपके लिए खुलती हैं, एंड यू कैन कीप मूविंग, और आप उसमें मूव करते हुए आगे बढ़ते हुए जाते हैं। तो परसिस्टेंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज पुश। पुश जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सम टाइम वी स्टॉप, लाइक मैं अगर हूँ कोई काम कर रहा है, या आपके कोलीग्स हैं, आप कंप्यूटर साइंसेज में हैं, आपका दोस्त एक रोबोटिक्स में है, दे हैड सम आइडिया इन माइंड, उन्होंने काम शुरू किया, एंड देन
he stopped working and she stopped working, for example, then if you can push it, then they can move forward. और ये push जो है बड़ी important होती है sometime. हमारे बहुत सारे colleagues ऐसे हैं, they stop doing certain things. For example, आपने बाहर apply करना है किसी university में, then you stop it and your another colleague push it to apply. जी आप apply करें बाहर Harvard University में करें, Fulbright scholarship पे करें. Sometimes this push is very important और ये push हमें एक दूसरे को करते रहना चाहिए. आप खुद भी push हो और दूसरों को भी push करते रहें. Another important thing for success is serve. जो भी लोग सक्सेसफुल हैं आप दुनिया में देख लीजिए, दे हैव वन कॉमन जो उनमें चीज है, दैट इज सर्व, कि वो सर्व करते हैं. आप बिल गेट्स की मिसाल ले लीजिए, दुनिया का रिचेस्ट मैन था, सेकंड या थर्ड नंबर पे है. ही हैज बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, उसमें पूरी दुनिया में वैक्सीन का भी गैवी के थ्रू उन्होंने बहुत बड़ा स्पॉन्सर किया है प्रोग्राम. दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं अभी, इवन पाकिस्तान में कासम अली शाह है, ही इज अ गुड पर्सन, और उन्होंने अभी रिसेंटली जो है बहुत बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया यूईटी के लिए. सो जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं एक कॉमन क्वालिटी उनमें ये होती है, दे सर्व द सोसाइटी. तो आप में भी अगर सर्विस का है कि आप डिफरेंस लाना चाहते हैं सोसाइटी में, आप में भी ये है कि आप सर्व करेंगे, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप उसको जो है आगे लेके जाए. अब चूंकि टाइम इज लाइक वी हैव जस्ट 1 आवर और इसमें 55 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं. आई स्टॉप हियर. बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मेरे माइंड में थी कि आई डिस्कस विद यू. मैंने कंट्रीज की आपको मिसालें दी, इंडिविजुअल्स की बहुत सारी मिसालें हैं. जैक मा की आपने अक्सर मिसाल सुनी होगी, नाउ इज द रिचेस्ट मैन इन चाइना, कि बहुत सारी जगहों पे उसने अप्लाई किया, उसे जॉब तक नहीं मिली. मैकडोनल्ड्स में, केएफसी में, पुलिस में वो गया, वहां पे जॉब नहीं मिली. एंड नाउ 11/11 की आपने सेल का शायद आपको आइडिया होगा, एक दिन में उन्होंने $56 बिलियन की सेल की है अलीबाबा के थ्रू. एंड पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट $20 बिलियन है. तो दिस इज हाउ द कंपनीज आर मेकिंग द डिफरेंस. दिस इज हाउ वी कैन आल्सो डेवलप दीज कंपनीज इन पाकिस्तान. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डू. देयर आर लॉट ऑफ, पाकिस्तान में तो इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं. We can start so many companies, we can bring so many solutions here in Pakistan. There are so many opportunities in Pakistan. Only there is need कि हम में हार्ड वर्क हो, हम में पैशन हो, हम में परसिस्टेंस हो, हम में फोकस हो, हम सर्व करने की नीयत पे हो, हमारे पास आइडियाज हो, we can also make the difference. So there are so many things that I wanted to share with you, but only time is short. And मैंने दूसरा काम ये किया कि मैंने प्रेजेंटेशन भी नहीं आपके साथ शेयर की. Only the thing was like I wanted to discuss some ideas with you. तो अभी मैं quickly जो है I stop here और I will happy कि आप एक दो अगर All question. right. All right, sir. Thank you so much for taking out time for us and sharing your knowledge with us. And you have exactly raised those points that we've been looking for in a session. And I hope that our students will make use of that knowledge. And I would request all, if you have any question, you can please ask Mr. Aftab Saab. आप नर्स के लोग हैं, आप ये क्वेश्चंस जो है ना, दे आर की टू लर्निंग. क्वेश्चंस जो हैं, और मैं आपको एक और बात बताऊं कि एक अगर कोई क्वेश्चन करता है ना, तो वो बाकी सब पे उसका एहसान होता है कि आपने एक बंदे ने सवाल पूछा तो 50 लोगों का उससे फायदा हो गया. तो इसलिए क्वेश्चन जरूर आप पूछा करें. Otherwise, अगर क्वेश्चन ना भी हुआ तो I have shared my number, so if you have anything to discuss, I'll be happy. मैं WhatsApp पे you can contact me and leave a message and I will try to answer. So yeah, guys, please feel free to ask the question. As he already mentioned that he has shared his number with you, so feel free to ask your question anytime. Yeah, I'm Mohammad Sadi. Ji sir. Yes. So I wanted to ask, in Pakistan forums that from where we can start or working, like my passion. I want to do a business, no? But in doing engineering and in this field, I want to build some the technical. I have the idea of like the AR robotics type machines
machines like which work on robotics and generally operated through the softwares like computers, and just we have to work on the computers and the machine and the machine the robots. Rest of work will be done by the robots. Like we have seen the machines in the Iron Man. The Right. is the one of Mhm. the first movie and the Iron Man. So we have found that there is a machine there. He uses the robots. He just put the things on a computer in a screen like in visualization, and then the robot do the rest of the work. Right. So the question is, From where we can start like working on these type of projects like in major yes, the first important thing is to make the team. If you can have like the people, you definitely हमारे यहाँ जो होता है कि we don't have the expertise. The important thing is in all the fields. So important thing is to make a team. Team अगर आप अच्छी बना सकते हैं from the different like people, some expertise in mechanical engineering and in computer sciences, and some other expertise जो भी इसमें required होती है. So the first important thing is to make the team. आप जब अच्छी team बना लेते हैं, then definitely there are a lot of different opportunities कि जिसमें आप जो है you can present your ideas at different forums, and there are several forums which also fund your ideas. So first, I think for any of the project, first important thing is to make a good team. अगर आप अभी जो आप बात कर रहे थे, इससे innovation of 2020 मैंने series of videos बनाई हैं 2020 की top 10 innovation की. ये जो है that is called the spatial computing. Spatial computing is a new area in which machines interact with each other, human interact with the machines, machine interact with the human. So this spatial computing is a modern era. इसमें आप एक चीज ये करें, first important thing is you learn the recent trends इसमें क्या है. You have to see कि किस countries में इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं and what they are up to, what they have done so far. I've been to Japan, I've been to Korea, I've been to China. In all these countries, they are excellent in these kind of ideas. So you have to see what they are doing, what they are up to now, and how they are working. And similarly, definitely you will have like some expertise and you need some experts. So if you can make a team, the team could be of your friends and your colleagues in your class or your university's fellow. So you can make a team and then you can proceed further. Even you can like contact the next thing is like you if you have some idea and you want to collaborate with some company that can give you a push in Pakistan. For example, there are several companies here in NSTP. They are working on something like AI and something computer machines interaction and something like that. So you can discuss with those if they can fund your ideas and projects. So that can give you a boost to proceed further. Thank you, thank you very much. All right. Is there anyone else? So anybody else have some question? There are still few people here, so you can definitely ask. Otherwise, later on we will have like some discussions. My office is in NUST in NSTP. It's 1103. So like if feel free to come someday to have some discussion. We can have a cup of tea together and we can have like you can bring some ideas and we can also have discussion like I can share my expertise whether this can be translated or not. Otherwise, there are also so many other experts here as well, so you can also get in touch with those. And definitely, we in NSTP the environment is people are very helping, so they will definitely help you. All right, sir. I think we'll conclude it here, sir. So it's been so nice having you here. Thank you so much again. And I hope we'll be seeing you again in the coming stages, sir. Thank you so much. And thank you so much, everyone, for the session. Thank you so much. Thank you. All right, sir. See you, sir. See you. Thank you. Bye. Hafiz. Allah Hafiz. Love it, sir.